Hello everyone, welcome to Veena classes. I guess you still can remember in my last video I had taught you about only the personal pronoun, but in this video I am going to teach you rest of the other categories of pronoun. So let's begin with the demonstrative pronoun. So what is demonstrative pronoun? Just look at them carefully. These, that, these and those, these four are called demonstrative pronoun. And always remember these four replaces the naming words. So here are the examples for your better understanding. I've just put on the board. Look at them carefully. This is my new house. That was his old school. And these are my new toys. Now that symbolize all the photos. Just look at them for your better conveniences. I've just put it on the board. So here the house that you are showing, this is my new house. So that is my old school, that was my old school. You are somehow representing the past. Rather, you saw a school, you are just telling someone like that was my old school. And these are my new toys. Just look at them. There are plenty of toys are there that symbolize about you are showing more than one. So this is demonstrative pronoun all about. So let's proceed to the next category. So coming down to the next, we call this interrogative pronoun. This is the second category that we have. What, who, which, when. So you know about all them. Interrogative always symbolize about the interrogative means the question sentences. We use all those different forms while we are making any question sentences. Now for your better conveniences, I have put some examples on the board. They are very visible to you. Just look at them very carefully. So who is your best friend? So that symbolizes who. We just put it right on the beginning just to ask a question to someone. When will you come tomorrow? तुम कल कब आओगे? Again there is a when, then again it tells us about a question. Similarly the last one, what is his favorite game? We are asking someone that what is your favorite game? So again what? It means all that interrogative pronouns, they always denote and represent the sentences that relates with the question. Let's move forward. So our next category of pronoun is relative pronoun. Let's learn about this. So which, that, who, whatever, they all symbolize this particular relative pronoun. Now a question can come out. आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हमने which, what, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल सीखा. अगेन रिलेटिव प्रोनाउन में यही सारी चीज़ रिपीट हो रहा है. आपको बता दूं दोनों चीज़ों में बस अंतर यही है. वेल द बेसिक डिफरेंस दैट रियली कैन assume अबाउट बोथ ऑफ दिस इज WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड का जो इस्तेमाल हमने किया, हु, व्हाट, व्हिच, ऑल दिस थिंग्स मेक सेंटेंसेस रिलेटेड टू क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए. और यहीं पे ये जो सारे एलिमेंट्स आपको दिख रहा है, ऑल दिस व्हिच, दैट, हु, व्हाटएवर, वी कॉल दिस रिलेटिव प्रोनाउन. मींस रिलेशंस को आपको डिपिक्ट कर रहा है. दैट डिपिक्ट्स एग्जैक्टली अबाउट द रिलेशनशिप. मींस इफ यू जस्ट लुक एट द केयरफुली at the beginning there is a name of a girl, Preeti. So Preeti, then we have put that particular relative pronoun right on this. So who is good in math is my best friend. It means यहाँ who जो है वो क्या कर रहा है, नाउन जो है उसको रिलेट कर रहा है बाकी सभी सेंटेंस के पार्ट्स के साथ. लाइक दिस कैन बी इंक्लूडिंग दिस क्लॉजेज और फ्रेजेस. सिमिलरली इट इज द ट्रूथ दैट यू डिक्लाइन टू एक्सेप्ट. मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कोई भी एक सच्चाई का जो तुम उस दिन मानने से या फिर स्वीकारने से तुमने मना किया था. सो डिक्लाइन दैट रेफर मीन्स अबाउट लाइक यू डिक्लाइन मीन्स यू एक्चुअली से नो. और यहाँ पे दैट जो है वो इस चीज़ को दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है. दोनों में एक रिलेशन क्रिएट कर रहा है. सिमिलरली द लास्ट वन, दिस मैथ हैज़ टू बी सॉल्व. ये जो मैथ है, दिस मैथ हैज़ टू बी सॉल्व. ये मैथ जो है इसको हमें सॉल्व करना है. However you do this, again we have put this however. Suppose there is a teacher which is asking a student like you have to solve it at any cost, whatever the tricks, whatever the ideas, however you do this is not a big issue, but you have to solve it at any cost. यहाँ however के जरिए आप क्या कर रहे हैं, मैथ को आप बता रहे हैं या मैथ्स के साथ बाकी चीज़ों के एक रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं. So that all signifies about the relative pronoun. Coming down to our next category, so we call this indefinite pronoun. Now what is indefinite pronoun? Just look at the board. This pronoun does not indicate anything particular or specific. Means once you simply does not specify or once you simply does not specify anything literally. आप कोई भी चीज़ को जब particular या आप specify नहीं करते हो. Few examples of indefinite pronoun that I've just put right for you. Just look at them carefully. So someone, anyone, none, some, one, anything you can use. Like you are just not specifying about a particular thing or a creature or anything, any animated or an inanimated object, but you are saying in different way. Like some people came here yesterday. You are just not specifying, you are just not indicating anyone. Instead of this, you are telling some people, you simply don't know who were there.
again came here yesterday. So anyone can question me. Suppose you are in a conference, you are in a meeting, so it's an open question to anyone. So anyone can ask me questions. So anyone is also a this example of indefinite pronoun. And lastly we have this, I want none of you in the seminar. मुझे तुम में से कोई भी इस सेमिनार में नहीं चाहिए. इट मीन्स अगेन यू आर नॉट स्पेसिफाइंग एनीवन अबाउट दिस. आपने नन को बोला यानी कोई भी नहीं चाहिए. यहाँ आपने एनीवन का इस्तेमाल किया और यहाँ आपने सम पीपल का इस्तेमाल किया. इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है जब हम क्या करेंगे, किसी को भी उद्देश्य करके बात नहीं करेंगे. वंस वी आर नॉट स्पेसिफिकली टेलिंग एनीथिंग अबाउट, वी आर नॉट इंडिकेटिंग एनीथिंग, दैट शोज अ इंडेफिनिट प्रोनाउन. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन. नाउ वी हैव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, द नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द स्क्रीन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस चीज को बोला जाता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. The self form, just look at this carefully. The self form of personal pronoun is called reflexive pronoun. Self form means अपने आप को ही बताना, अपने आप को ही समझाना, उसी चीज को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, इटसेल्फ, एटसेट्रा. जैसे और उदाहरण में अगर हम जाए इस चीज को डिटेल में बयान करें तो फिर आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे दिया है आपके अच्छे सुविधा के लिए, समझने के लिए. I finished my work own self. Just look at this. She solved the puzzle herself. Or lastly, tiger catches prey itself. Just look at them carefully. यहाँ मैंने एक एनिमल का भी उदाहरण दिया है, टाइगर का, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए. I finished my work. See one thing, you are using mine. माई का आप इस्तेमाल कर रहे हो. आपको पता है, मैंने पढ़ा है अभी कि माई जो है वो एक पर्सनल प्रोनाउन है और उस चीज़ को, माई को रिप्रेजेंट कर रहा है ओन सेल्फ. यानी मैंने खुद से ये चीज़ को किया, कि मैंने जो ये काम मैंने अपने से किया. आई डिडंट टेक हेल्प ऑफ एनीवन एल्स. शी सॉल्व द पजल हरसेल्फ. उसने ये जो पजल है उसको अपने से किया. शी इवन डिडंट टेक अ हेल्प ऑफ समवन एल्स. एंड सिमिलरली टाइगर जो होती है वो अपने प्रे यानी अपने शिकार को जो है खुद ही पकड़ती है या पकड़ता है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए. सो यहाँ पे सेल्फ फॉर्म देखिए, जो भी बताइए, ये जो सारे आई, शी, टाइगर, लेट इट बी व्हाटएवर, ये सारे चीज अपने सेल्फ को यानी अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो हियर आई होप दिस पर्टिकुलर प्रोनाउन कैटेगरी इज एट ऑल क्लियर टू यू. सो कमिंग डाउन एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस. सो हियर वी हैव ऑन द बोर्ड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. सो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वी हैव समथिंग जस्ट टू लर्न ऑफ कोर्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट दिस distributive pronoun. So let's go ahead with this. Each, neither, either and every, they are the examples of distributive pronoun. यहाँ पे नीचे एक कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट कोड है आपके लिए. All these pronouns denotes more than one person or thing. हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव that always comes from the word of distribution. जैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, किसी लोगों में इस चीज़ को बांटते हैं, तो जाहिर सा बात है एक से ज़्यादा लोगों में कोई चीज़ इसको बांटते हैं, तो जाहिर सा बात है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो है वो भी एक से अधिक लोगों में हम क्या कर रहे हैं, इस प्रोनाउन का इस्तेमाल करने के लिए हमें कहा गया है. सो हियर आर सम एग्जांपल, जस्ट लुक एट देम केयरफुली. ईच वन ऑफ देम इज गुड इन मैथ. यानी यहाँ आप अच्छे से फॉलो कीजिए. ईच वन ऑफ देम इज गुड इन मैथ. यहाँ आप एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप को बता रहे, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, हमने यहाँ जो वर्ब का जो नंबर है वो सिंगल को हमने, सिंगुलर को या सिंगल को हमने अडोप्ट किया है. वी नेवर कैन पुट, दो इट्स एक्चुअली शोज द कम्युनिटी, दो इट्स एक्चुअली शोज एन एंटायर क्लास और अ ग्रुप, बट डिस्पाइट ऑफ दिस वी ऑलवेज नीड टू यूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब. जस्ट मेक श्योर, जस्ट कीप इट ऑलवेज इन योर माइंड that each one, though it represents, as I said, about a community or a group, but we always have to put a singular number right with this, because each one, क्योंकि आप हर करके एक एक बच्चे को या एक एक व्यक्ति को आप दिखा रहे हैं. So either Kunal, just look at this, either Kunal or Saurav will join me. तो यहाँ आप ऑप्शन दे रहे हैं, इन दोनों में से कोई कल मुझे ज्वाइन करेगा, कुणाल या सौरभ, दोनों में से कोई भी एक. आप एक से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो. नीदर ऑफ यू इज गुड इन स्पोर्ट्स, यानी फिर से आप बता रहे हो कि आप में से कोई भी, यू सिंपली डोंट नो हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, बट यू शो अ कम्युनिटी और अ ग्रुप दैट नीदर ऑफ यू इज गुड इन स्पोर्ट्स. आप में से कोई भी स्पोर्ट्स में यानी खेल कूद में बेहतर नहीं है. फिर से मैं बता रहा हूं, हमने यहाँ हालांकि सिंगल आदमी को नहीं बताया, दर्शाया, लेकिन हम जब उसमें इस्तेमाल करेंगे वर्ब का, तो हमें हमेशा क्या करना है, सिंगुलर नंबर को ही डालना है, हालांकि आप एक कम्युनिटी या ग्रुप को या ज़्यादा लोगों को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो. सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. सो जस्ट वंस यू आर स्टडिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और जस्ट यूजिंग दिस, यू हैव टू कीप ऑल दैट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन राइट इन योर माइंड. सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट कैटेगरी.
So here we have the last category, we call this reciprocal pronoun. This is very important for you. So reciprocal pronoun has only two forms. The first one is each other and the second one is one another. So we also have a small like description about this. This pronoun means each other pronoun, this is used only for two persons. Just look at this carefully. Only for two persons you can use it. And one another, this pronoun is used for more than two. इस चीज़ को आपने हमेशा ध्यान रखना है। और ये चीज़ ध्यान रखिए कि रेसिप्रोकल के दो ही प्रोनाउन कैटेगरी होती है, एक ईच अदर एंड द सेकेंड वन इज वन अनदर। सो है सम एग्जांपल्स दैट्स फॉर यू। इस मीन्स अगर आप दो व्यक्तियों में अगर आप ईच इस्तेमाल करोगे तो आपने ईच अदर का इस्तेमाल करना है, एंड इफ यू जस्ट यूज दिस मोर देन टू पीपल, यू हैव टू यूज दिस वन अनदर लिटरली। Now here are some examples that I've just put for you for your better understanding. So look at them carefully. They like each other since childhood. We talk about only two people. It means they two, they are symbolized about these two. So they like each other. ये दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं. In this condition, people must support one another एवरीवेयर। सपोज मान लो कि कहीं पर कोई कभी भी परिस्थिति कभी भी कहीं पर भी कुछ खराब हो चुकी है या हो रही है, तो इस वक्त लोगों को एक दूसरे के सपोर्ट करना चाहिए, लोगों को एक दूसरे का जो है हौसला बढ़ाना चाहिए। तो उस सेंस में आप ये बोल सकते हो कि इन दिस कंडीशन पीपल मस्ट सपोर्ट वन अनदर एवरीवेयर। आपको हर जगह के लोग जो है एक दूसरे को, यानी एक आप कम्युनिटी, एक ग्रुप, एक बड़े से लोगों को आप दर्शा रहे हो यहाँ पर और बता रहे हो कि वन अनदर। हालांकि आप इस्तेमाल कर रहे हो वन अनदर, लेकिन ये एक बड़ा सा कम्युनिटी या ग्रुप को भी फिर से डिनोट कर रहा है या हमें समझा रहा है। सो हेयर आर द इंफॉर्मेशन वी हैव दिस रेसिप्रोकल प्रोनाउन। सो हेयर आर द एंटायर प्रोनाउन कैटेगरी हैज जस्ट कम डाउन टू एन एंड। मुझे लगता है इस वीडियो के जरिए आपको प्रोनाउन के सारे कैटेगरीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपने और भी कोई डाउट है, बार बार इस वीडियो को देखिए, आपके कोई भी डाउट होगा, कोई अगर आपके प्रॉब्लम होगा, कोई क्वेरीज होगा, सारे क्लियर हो जाएंगे। आगे ऐसे और वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।